Hello everyone, welcome back to Understand UPSC. This is the fourth lecture in the mapping series and the third lecture in the Indian mapping series, that is Bharat Darshan. One lecture for international river mapping has already been done. In this particular lecture, we will be covering Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal, these five Indian states. The PDF of this particular lecture obviously is very important because it will help you revise in lesser time. Will be found at the Telegram channel of Understand UPSC. You can simply type Understand UPSC on Telegram and you will find the channel, or you can click at the link given in the pinned comment and download this particular PDF for your use. Okay, before we move ahead to start the lecture, there is this very important announcement which I'm just reiterating for people who are new. There is a very important session that is coming up at 8 p.m. tomorrow, that is Sunday 14th May, on Understand UPSC's YouTube channel, where I'll be showing and discussing with you my original UPSC Prelims 2022 paper. Okay, this has not been done before. I'll be discussing with you my original paper. You should not miss it at any cost. It will be a live session. I'll be answering your queries in the comment box, whatever your queries are regarding it, and trust me, it will change your entire perspective. It will give you so much of confidence. Thus, this will be the most important session that you're going to have for UPSC Prelims 2023. Please do not miss it. It's for your own benefit. Okay, so before we start the lecture, I just want to show you something. You would have seen in the thumbnail that I've talked about this lecture being better than ChatGPT. So when we were doing our research, Rishabh sir just tried ChatGPT for something, for some doubt of his. He asked ChatGPT which river passes through the Pilibhit Tiger Reserve. Okay, so the answer that ChatGPT gave was that it is the Sharda River. And of course, sir knew, so he asked back, is it not Gomti? Then the ChatGPT said, apologies for the confusion. You are correct. The Gomti River passes through the Pilibhit Tiger Reserve. Okay, then thank you for pointing it out. Okay, then Rishabh sir again asked, are you sure that it is the Gomti? Just messing up with ChatGPT and see what happened. I apologize for the incorrect information provided earlier. Upon double checking, it appears that the Gomti River does not pass through the Pilibhit Tiger Reserve. Here, ChatGPT was saying it for sure. That yes, you are correct, it is the Gomti, but here it is again saying that no, it does not pass through it. I'll apologize for the confusion caused by my previous response. Then Sir didn't stop here, he took it even further, asking, now give me the final answer. What's the final answer? Is it the Gomti or is it not? And at last, ChatGPT was again like, I apologize for the confusion. The final answer is that there is no major river that passes through the Pilibhit Tiger Reserve. The reserve is this. So, even AI is not that I. Okay, so there is a lot of effort that goes behind this lecture, but along with that, I also just wanted to cheer you up a bit. So, I just discussed this particular thing. I laughed a lot when he showed it to me, and thus I thought of just sharing it with you for a light moment. Okay, now let's come to the business of the day. Let's start with Uttarakhand. Okay, so first we'll cover a very important area, which is this area. देखिए होता क्या है, when the Alaknanda river, this is the Alaknanda river, okay, from here, when the Alaknanda river starts from the Satopant Pahadia and moves down, it forms the Panchprayag at various points. ठीक है, ध्यान से सुनना है. अलकनंदा रिवर ऊपर से निकली, ओके, सतोपंथ की पहाड़ियों से. सबसे पहले यहीं पे आ जाता है बद्रीनाथ. जय भोले शंकर. यहीं पे आ जाता है सबसे पहले बद्रीनाथ. फिर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा धौली गंगा मिली आके अलकनंदा में. ये आपका बनता है पहला प्रयाग, द विष्णु प्रयाग. क्लियर? जहाँ पे धौली गंगा आके अलकनंदा से मिलती है, इट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, जोशीमठ. ठीक है, लैंड सब्सिडेंस का इशू हुआ था यहाँ पे बहुत मेजर, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सब कुछ हुआ, बहुत मेजर इशू. ठीक है, तो पहला प्रयाग जहाँ बनता है विष्णु प्रयाग, वहाँ क्या है, जोशीमठ है. तो आपको क्या याद रखना है अगर पूछा जाए, जोशीमठ इट इज एट द कंजंक्शन ऑफ और द मीटिंग पॉइंट ऑफ
धौली गंगा एंड अलकनंदा। क्लियर। देन मंदाकिनी रिवर मिलती है अलकनंदा में आके, और ये कौन सा प्रयाग है? इट इज द नंद प्रयाग। ठीक है। तीसरे लेवल पे पिंडार गंगा आके मिलती है अलकनंदा पे यहां से, एंड इट इज द कर्ण प्रयाग। चौथे लेवल पे आपकी ऊपर से ये वाली यहां से जो रिवर आ रही है ये मीट करती है, एंड इट फॉर्म्स द रुद्रप्रयाग। एंड एट लास्ट योर भागीरथी मीट्स एंड इट फॉर्म्स द देवप्रयाग। ओके, सो ये पंच प्रयाग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। वाई? स्पेशली बिकॉज ऑफ जोशीमठ। सो सबसे ज़्यादा अगर और भी कुछ आप इनमें से नहीं याद रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट जोशीमठ याद रखिए। दिस बिकम्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर इन एटलीस्ट इन उत्तराखंड। ओके, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, जस्ट लुक एट इट। सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग आया, ठीक है। फिर उसके नीचे आप चले तो यहां पे दिस इज, अच्छा मेरे से जस्ट एक छोटा सा वो है, दिस इज द नंदाकिनी रिवर। ओके, नॉट द मंदाकिनी रिवर, दिस इज द नंदाकिनी रिवर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम नंदा देवी, सो इट इज द नंदाकिनी रिवर। तो विष्णु प्रयाग पे कौन सी रिवर मिली? धौली गंगा। फिर नंद प्रयाग पे कौन सी रिवर मिली? नंदाकिनी, ये याद रखिएगा, नंदाकिनी। देन कर्ण प्रयाग पे कौन सी रिवर मिली? पिंडार गंगा। देन आपकी लास्ट में मंदाकिनी रिवर आके मिली, एंड इट फॉर्म्ड द रुद्रप्रयाग। ओके, और बिल्कुल यहां लास्ट में दिस फिफ्थ नंबर पॉइंट, दिस इज वेयर भागीरथी मीट्स एट द देवप्रयाग। ऐसे करके ये आपके पंच प्रयाग हैं। तो ऊपर से नीचे अगर काउंट करोगे तो VNKRD, ऐसे करके ये पंच प्रयाग आपके ऊपर से नीचे आते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, सो अभी ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं कि कौन सी कहाँ से निकलती है। तो जैसे अलकनंदा निकली सतोपंथ से, ठीक है। फिर धौली गंगा जो रिवर है वो आपकी इस वाले पार्क को निकल के आती है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्या है? दिस इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस एंटायर एरिया दैट यू आर सीइंग इन ग्रीन, दिस एरिया, दिस कंप्लीट एरिया, इट इज़ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ से धौली गंगा भी जाती है, नंदाकिनी भी जाती है, नंदा देवी की पहाड़ी भी यहीं पे है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहीं पे है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी इसी में आता है। ये पूरा मतलब एकदम अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। यहाँ से धौली गंगा भी पास होती है कट करते हुए, नंदाकिनी भी पास होती है। ओके, नंदाकिनी या तो कह लो नंदा देवी नेशनल पार्क से निकलती है, कह लो नंदा देवी की पहाड़ियों के पास से निकलती है, एक ही बात है। फिर जो पिंडार गंगा है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, नाम से पता चल रहा है, पिंडारी ग्लेशियर, पिंडार गंगा। अब इधर आते हैं, फिर यहाँ पे आपकी ये चौथे नंबर पे मंदाकिनी जो आके मिल रही है, ये आपकी कहाँ से निकल रही है? चाराबारी ग्लेशियर से, ठीक है। और चाराबारी ग्लेशियर से निकली, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पे पड़ता है केदारनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ भगवान किस पे पड़ते हैं? इट इज वेयर अलकनंदा स्टार्ट्स, ठीक है। केदारनाथ इज ऑन मंदाकिनी, जोशीमठ धौली गंगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? प्रयाग क्लियर हो गए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्लियर हो गए, ये पूरा एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे जो मैं बता रहा था आपको, द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसी में वैली ऑफ फ्लावर्स भी आ गया, इसी में नंदा देवी नेशनल पार्क भी आ गया, ठीक है। क्लियर? एंड देन द सेकेंड थिंग जो आपका ये है, क्या बोलेंगे इसको, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, ठीक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और मस्क डियर यहाँ पे मिलता है, यूपीएससी पूछ भी चुका है। देन वैली ऑफ फ्लावर्स, दिस इज नोन फॉर द एल्पाइन वेजिटेशन एंड ऑल्सो फॉर द एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स। क्लियर? समझ में आ गया पूरा? ये पूरा एरिया बस याद रखना, इसका एक स्नैपशॉट ले लो एंड जस्ट रिमेंबर इट। लेट मी जस्ट इरेज अ बिट ऑफ अ थिंग्स, ताकि मैं एक बार दोबारा से फटाफट से आपको रिवाइज करा दूं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करो। सबसे पहले अलकनंदा पे क्या है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले अलकनंदा कहाँ से निकली? सतोपंथ से। उस पर क्या पड़ता है? बद्रीनाथ। सबसे पहली रिवर आके कौन सी मिली? धौली गंगा। वो किस नेशनल पार्क के बीच में से आ रही है, या किस बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में से आ रही है? नंदा देवी। धौली गंगा आके जहाँ मिली वहाँ पे क्या लोकेटेड है? जोशीमठ।
अगली रिवर कौन सी आके मिली, नंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ से आ रही है, नंदा देवी की पहाड़ियों से, ठीक है। वहाँ पे कौन सा प्रयाग बना, नंद प्रयाग। तीसरी रिवर कौन सी है, पिंडार गंगा, वो जहाँ आके मिली वहाँ पे कौन सा प्रयाग बना, कर्ण प्रयाग, वो कहाँ से निकल के आई थी, पिंडारी ग्लेशियर। चौथी रिवर कौन सी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकल के आ रही है, चाराबारी ग्लेशियर से। चाराबारी ग्लेशियर के पास क्या पड़ता है जहाँ मंदाकिनी निकल के आती है, केदारनाथ। जहाँ मिलती है मंदाकिनी आके अलकनंदा में वो क्या है, रुद्रप्रयाग। लास्ट में भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकल के आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। वहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, और जहाँ पे भागीरथी आके मिलती है वो क्या है, देवप्रयाग। क्लियर हो गया, पूरा रिवाइज हो गया, भूलोगे तो नहीं। चलो ठीक है, ये वाला एरिया डन है। अब इधर आ जाते हैं। सो ये है आपका बंदर पूंछ का ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी निकलती है, ऑब्वियसली यमुना, यूपीएससी पूछ चुका है पहले भी। यही आपका क्या है, यमुनोत्री, ठीक है। हर एक उस पर कुछ ना कुछ पढ़ता हुआ दिख रहा है ना, यमुनोत्री, भागीरथी पे गंगोत्री, मंदाकिनी पे केदारनाथ, अलकनंदा पे बद्रीनाथ, धौली गंगा पे जोशीमठ, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, देवभूमि है पूरी। फिर यहाँ से निकला, यहाँ से दूसरी रिवर निकलती है टोन्स, ये ऊपर वाली टोन्स है, नीचे वाली नहीं। तो ये टोन्स रिवर यहाँ से निकल के यहीं यमुना में मिल जाती है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है गोविंद पशु, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर इसके नीचे यहाँ पे पड़ती है रामसर साइट विच इज़ द असान बैरेज, और ये किसके लिए फेमस है, वल्चर्स के लिए। क्लियर, ये वाला एरिया क्लियर हो गया, ऊपर का पूरा नॉर्दर्न एरिया। अब नीचे आते हैं, दिस इज द सदर्न उत्तराखंड। सो इसमें यहाँ पे आपका दिस एंटायर एरिया इज काइंड ऑफ द, इट कंप्राइजेज ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क। इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ द जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। तो यहाँ पे अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, विच इज़ वाई इट इवन बिकम्स more important. Then also it has the सोन नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेरे साथ ही याद करते जाओ, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन दिस इट ऑल्सो हैज़ द, दिस एंटायर एरिया कैन बी सिंगल हैंडेडली क्लासिफाइड एज द शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। ये पूरा एरिया इसको शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया, राजाजी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, सोन नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब आ गया इसमें। एंड द रिवर दैट पासिस थ्रू इट इज़ द गंगा, जहाँ देवभूमि पे भागीरथी आके मिल जाती है अलकनंदा से, वहाँ के बाद फिर इसे हम गंगा ही कहते हैं, ठीक है। गंगा मैया की जय। ओके, क्लियर हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पे एक आपकी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें लिपू लेक पास पड़ता है, मस्क डियर मिलते हैं, और काली रिवर यहाँ से पास होती है, वही जो डिस्प्यूटेड वाली है। ओके, तो ये सब पूरा का पूरा आपका उत्तराखंड का मैप हो गया। ये वाला एरिया इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करके रखना, इसमें कुछ गड़बड़ मत करना। ओके सर, चलें आगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका यूपी। तो ऊपर से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी यमुना एंटर हुई यूपी में, ये गंगा एंटर हुई। तो पहले यमुना के किनारे चलते हैं, ठीक है। तो यमुना सबसे पहले तो यहाँ ऊपर आती है, एलिफेंट रिजर्व मिल जाता है आपको एक पूरा यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में, नॉर्दर्न यूपी में एकदम टिप पे। फिर इसके नीचे आते हैं हम, तो सबसे पहले यमुना ऐसे ट्रेड करी, ठीक है, चलते गए चलते गए चलते गए यहाँ तक आए, ठीक है। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको क्या मिला, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये रामसर साइट है सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी की। ये क्या है, एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो बहुत सारे फ्लाईवेज है ना दुनिया में, जिस पे पूरी वो बर्ड्स आती जाती हैं, उसका स्टॉपेज पॉइंट है, ठीक है। फिर आप आगे चले, यहाँ पे आपको क्या मिला, समान बर्ड सेंचुरी, अगेन रामसर साइट। ये एक ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक क्या होती है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर आगे चले, यहाँ पे क्या मिला, सरसाई नवार झील, एंड दिस इज फेमस फॉर व्हाट, सारस क्रेन्स, ठीक है जी। फिर आप आगे चलोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट डिक्लेयर्ड, ठीक है, क्योंकि पन्ना इसके पास ही है, तो पन्ना को प्रोटेक्ट करने के लिए और बड़े एरिया में प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रानीपुर डिक्लेयर किया था, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और ये यहाँ पे आके मिल गया, ये आके मिल गई यमुना जी गंगा जी में, ठीक है। समझ में आ गई बात, यमुना का किनारा समझ में आ गया। अब ऐसे चलिए गंगा को ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो गंगा एंटर करी यूपी में, सबसे पहले एंटर करते ही अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मिल गया, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। फिर नीचे आए तो यहाँ पे क्या मिला आपको, दो चीज़ें, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैदरपुर वेटलैंड, जो कि एक रामसार है, ठीक है। हस्तिनापुर अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस फिगरिंग ऑल्सो, सो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर इस पर हम नीचे चले तो सबसे पहले मिलता है अपर गंगा का जो एरिया है, उसमें एक रामसार डिक्लेयर्ड है अपर गंगा के एरिया में, ऐसे करके यहाँ ऐसे। तो ये क्यों डिक्लेयर्ड है, इसमें क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, घड़ियाल एंड गैंजेस रिवर डॉल्फिन,
फिर नीचे आते हैं, फिर नीचे आए तो आपको यहाँ पे क्या मिली, संडी बर्ड सेंचुरी या सांडी या संडी जो भी बोलोगे। फिर और नीचे आओगे तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। और नीचे आओगे तो समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी मिलेगी। एंड देन टिल हेयर। क्लियर हो गई बात। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ वाराणसी, सारनाथ, एंड देन यू एंटर इनटू बिहार। ठीक है जी, गंगा जी का किनारा ट्रेस हो गया। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ओके, तो यहाँ से आपकी निकल रही है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नीचे आके मिलती है इधर गंगा में, तो एक ट्रिब्यूटरी क्या हो गई, रामगंगा हो गई। ठीक है जी, यहीं जहाँ ये मिलती है यहीं आपका संडी बर्ड सेंचुरी। ओके, ये सब तो मैंने बता दिया आपको। देन यहाँ शिवालिक्स में से निकल के आती है गोमती आपकी। गोमती निकल के आई, और गोमती पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी पड़ी, लखनऊ। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। फिर नीचे आए और यहाँ पे जहाँ आपकी गोमती मिल गई गंगा जी में आके, यहीं आपका पड़ा वाराणसी। फिर ये सारनाथ आके और चले गए हम बिहार में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका नेक्स्ट ट्रेस करते हैं। तो ऊपर देखिए ये काली रिवर है, ये काला, ये इसी रिवर पे यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट जगह पड़ती हैं। कौन कौन सी, जिस पे लड़ाइयाँ रहती हैं अभी इंडिया नेपाल और ये सब एरियाज़ में। लिपू लेक, लिम्पाधुरा, काला पानी, ये सब एरियाज़ पड़ते हैं और हमारा अच्छा खासा इसमें इशू चलता रहता है। तो यहाँ से फिर हम नीचे आए। ठीक है, ये नीचे आए तो सबसे पहले देखिए ये गोमती चल रही थी आपकी, दिस इज़ द गोमती। ओके, तो यहाँ इसके और काली रिवर जो इंडिया में शारदा के नाम से भी जानी जाएगी, इस पे क्या पड़ता है आपका शारदा। यहीं जब इसके बीच से गुजरती है ना, यहीं एक छोटी सी शारदा रिवर मिलती है इसमें से। तो ये जो काली रिवर है इस पे सबसे पहले क्या पड़ा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। थोड़ा आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आओगे, इस पूरे एरिया में आओगे जब, दिस एंटायर एरिया, दिस इज द दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर ही आपका क्या पड़ गया, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व वैसे अपने आप तो न्यूज़ में रहता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो रिमेन्स इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे इंडियन राइनो को हम लेके आए थे फ्रॉम पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, समझ में आ गया कौन सी छोटी सी रिवर भी पास होती है यहाँ से, शारदा। ठीक है, फिर यही रिवर आगे गई और इसके जस्ट बराबर में यहाँ पे कौन सी रिवर निकल के आ रही है, इट इज़ द घाघरा। ये यहाँ से ऊपर तिब्बत से, ये देखो पूरा नेपाल ट्रेस करते हुए ये निकल के आई, और ये भी लगभग इसी के बीच से जा रही है। ऐसे मान लो इसको क्रॉस कर रही है ये दुधवा को, कतरनी घाट को, और यहाँ ये आगे आ गई, ये दोनों यहाँ मिल गई। ठीक है, जैसे ये मिलती है ये बन जाती है सरयू की नदी। और सरयू किनारे कौन पैदा हुए थे, श्री राम। तो इसलिए सरयू पे क्या है, अयोध्या। समझ में आ गई बात। आगे गए और जाके गंगा जी में सरयू मिल गई। तो यहाँ जहाँ अयोध्या के बिल्कुल पास है, अयोध्या से 10-20 किलोमीटर दूरी है ये, पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट। ये एक ऑक्सबो लेक है, घाघरा से निकली हुई। यहाँ पे आपको वर्चर स्पीशीज मिलती है। एंड देन इसके बराबर में ही आपकी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये भी एक रामसर साइट है। हो गया पूरा का पूरा यूपी ट्रेस। ठीक है, फटाफट रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले यमुना एंटर करी, यमुना पे आपको सूर सरोवर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पॉइंट है। फिर समन बर्ड सेंचुरी, फिर उसके बाद आपकी सरसाई नवर झील, और आके मिल गई आपकी गंगा में। फिर गंगा सॉरी फिर गंगा जब यूपी में एंटर करी, सबसे पहले अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एंड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द हैदरपुर वेटलैंड रामसर साइट। फिर अपर गंगा में घड़ियाल गैंजेस मिलती हैं। फिर नीचे संडी बर्ड सेंचुरी के पास क्या आके मिली, रामगंगा। फिर आगे नवाबगंज, समसपुर मिल गई इधर यमुना से। आगे बढ़ी वाराणसी पे क्या के मिली, यहाँ पे गोमती पे और क्या था, लखनऊ मिली। आगे सारनाथ, और ये बिहार में बह गई। ऊपर आपकी काली आई और इधर से घाघरा आई, दोनों मिली, सरयू बनी। सरयू पे अयोध्या पड़ा, इसके पास ही पार्वती अरंगा, इसके बराबर में बखीरा, आके गंगा में मिल गई। यहाँ ऊपर दिस एरिया पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इधर दुधवा टाइगर रिजर्व। ये दोनों इनसे दोनों से वही काली रिवर आराम से पास होती है, और एक शारदा रिवर छोटी सी दुधवा से पास होती है। इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा के अंदर किशनपुर एंड कतरनी घाट। हो गया रिवाइज, चलें आगे, क्लियर। चलो फिर अब आप आ गए आपके कहाँ, बिहार में एंटर कर गए। तो देखो ये सारी नदियाँ यूपी से बिहार में, ये 2-3 नदियाँ यहाँ पे आ रही हैं। देखो ये घाघरा यहाँ पे आई, ये गंगा आई,
ठीक है, देखो यहाँ ऊपर देखो, ये घाघरा यूपी में ज्वाइन नहीं कर रही थी ना, ये यहाँ पे आके बिहार में ज्वाइन करेगी आगे, तो ये यहाँ पे आके ज्वाइन कर गई। ठीक है, फिर गंगा जी, ओके, फिर ऊपर यहाँ से होती हुई आ रही है क्या, गंडक, और ये आके कर गई ज्वाइन यहाँ पे बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक आके कर गई ज्वाइन यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे से कौन सी आ रही है, सोन, ओके, ये सोन आके यहाँ ज्वाइन कर गई। एक आ रही है पुनपुन, पुनपुन आके ज्वाइन कर गई। तो देख रहे हो गंगा कितना 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 पानी लेके जाती होगी। उससे पहले कर्मनाशा, कर्मनाशा भी आके गंगा में ज्वाइन कर गई। समझ में आ गई बात, ये वाला रिवर सिस्टम समझ में आ गया। घाघरा यूपी से आ रही थी, गंगा तो आ ही रही है यूपी से, कर्मनाशा कहाँ से निकली है, कैमूर की पहाड़ियों से, सोन नीचे से आ ही रही है। ठीक है, फिर पुनपुन कहाँ से निकली है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ऊपर से कौन सी आई है, गंडक, गंडक कहाँ से आई है, नुभाइन हिमाल ग्लेशियर जो कि अपर नेपाल में पड़ता है, वहाँ से गंडक निकल के आई यूपी बिहार के बॉर्डर से बहती हुई और आके मिल गई। यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ियों से क्या निकला, बूढ़ी गंडक, इस पे यहीं क्या लोकेटेड है, इस एरिया में, दिस एरिया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ट्राइब जो न्यूज़ में रहती है वो है थारू ट्राइब। ठीक है, और यहीं पे क्या लोकेटेड है, आर्ट एंड कल्चर, लोरिया नंदनगढ़ का पिलर। ठीक है जी, ये फिर नीचे आई यहाँ पे, और ये यहाँ पे मिल गई आपकी। तो जहाँ ये मीट करी गंगा में, यहीं पे क्या है आपका, कंवर का ताल है। ये अपने आप में बहुत सारे वर्चर्स के लिए, कम से कम 3 वर्चर्स के लिए फेमस है, और यहीं पे कवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर 2 स्पीशीज विच आर फाउंड हेयर, सोशेबल लॉपिंग, बेयर पोचार्ड, एंड ये दोनों क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं। और वो तो हैं ही, वल्चर्स तो हैं ही। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर इसके आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज अ रिजर्वायर और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट व्हाट, द गैंजेटिक डॉल्फिन्स। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे कोसी, कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार की सौरो, क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत फ्लड्स आते हैं बिहार में, वो यहाँ पे आके आगे मिल गई। एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेट्स, तब गंगा फिर आपकी आगे निकल जाती है। क्लियर हो गई बात। यहाँ ऊपर आप देखोगे दार्जिलिंग से महानंदा निकल के आएगी और ये नीचे जाके गंगा में मिलेगी, बट इसको हम अगले स्टेट में कवर करेंगे। यहाँ के लिए क्लियर हो गई बात आपके सारी की सारी। ठीक है, ये कैमूर की पहाड़ियों से कर्मनाशा निकली थी, सोन नीचे से आ रही है, पुनपुन निकली थी छोटा नागपुर प्लेट्यू से। 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बोध गया, राजगीर। तो अगर पूछ ले बोध गया सोन पे पड़ता है, नहीं पड़ता, राजगीर जो है वो सोन पे पड़ता है, नहीं पड़ता, तो ऐसे करके याद रखना थोड़ा सा। क्लियर हो गया, इसमें कुछ और है नहीं बताने वाला, समझ में आ गया पूरा। चलें आगे, ये बस स्पीसीज याद रख लेना, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कवरताल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर हम आते हैं आपके झारखंड पे। ठीक है, तो देखो जो ये सोन रिवर यहाँ जा रही थी ना, ये ऐसे, ये यहीं से होके जा रही है, झारखंड से निकली थोड़ी सी और फिर बिहार में चली गई, और यहीं पे छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपकी निकलती है नॉर्थ कोयल, और यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ जाके मिल जाती है सोन में, और फिर सोन जाके मिल जाती है गंगा जी में। ठीक है, तो जहाँ ये निकल रही है, यहीं छोटा नागपुर प्लेट्यू के यहीं के थोड़े से पास एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, नेतरहाट। इसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोलते हैं, बहुत सुंदर जगह है, एंड वाटरफॉल्स वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, द पलमाऊ टाइगर रिजर्व, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये बेतला नेशनल पार्क भी है। तो पलमाऊ बेतला बोल लीजिए, बेतला पलमाऊ बोल लीजिए, ये एंटायर सिस्टम है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ है ये। तो अगर पूछे कि कौन से रिवर के बैंक पे है, तो समझ जाओगे अब तो आप, नॉर्थ कोयल के बैंक पे, नॉर्थ कोयल इससे निकल रही है। फिर यहीं से आपकी निकलती है दामोदर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है दामोदर, बताएगा कोई, बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ से ये वाली निकलती है आपकी सुब्रनेखा। तो सुब्रनेखा जिस एरिया से निकलती है वो है आपका सिंहभूम का एलिफेंट रिजर्व, ये पूरा का पूरा एलिफेंट कॉरिडोर है। इसको डलमा कॉरिडोर बोल लो, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व बोल लो, कुछ भी बोल लो। यहाँ पे आपकी डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। ठीक है, घाटशिला पड़ती है, घाटशिला का जो टाउन है, जो इंपॉर्टेंट टाउन है वो पड़ता है। एंड ये एक फॉरेस्ट पड़ता है यहाँ पे, सरंदा का फॉरेस्ट, ये इंडिया का बिगेस्ट साल फॉरेस्ट है। तो इस पूरे एरिया को कौन सी रिवर ड्रेन कर रही है, सुब्रनेखा। सुब्रनेखा की कहाँ जाके मिलती है बताना। ओके, ऊपर यहाँ पे एक हजारीबाग की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट्स वगैरह को लेके काफ़ी न्यूज़ में थी इस बार, और यूपीएससी ने पहले गिरनार पूछ लिया था जो कि एक जैनिज्म की साइट थी, तो अब हो सकता है पारसनाथ भी पूछ ले, क्योंकि वो भी प्रोटेक्टेड एरिया से पूछा था, और ये भी हो सकता है पूछ ले, बिकॉज इस बार न्यूज़ में था। तो आप याद रखिएगा, दिस इज इन झारखंड, और इसके ऊपर यहाँ पड़ता है आपका देवगढ़। आगे बात समझ में, हो गया झारखंड कवर, ज़्यादा कुछ है नहीं, याद रहेगा। नॉर्थ कोयल निकली छोटा नागपुर प्लेटू से, सोन में मिल गई, उसके कॉर्नर पे क्या है, पलामाऊ। फिर सुब्रनेखा मिली,
सुबर्णरेखा निकली छोटा नागपुर से और किसके थ्रू पास हो गई, सिंहभूम के थ्रू, वहीं आपकी डलमा है। ठीक है, और ऊपर दामोदर हो गई पास झारखंड से, दामोदर के थोड़ा मतलब ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे तो पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो क्या है, जैन रिलीजियस साइट है। देन उसके ऊपर हजारीबाग थोड़ा लेफ्ट में, और उसके ऊपर देवगढ़। हो गया, रिवाइज हो गया। चले आगे। नाउ वी कम टू व्हाट इज नोन एज पश्चिम बंगाल। सॉरी यार, पता नहीं गले में क्या दिक्कत है। ओके, सो दिस इज़ द गंगा रिवर। गंगा रिवर आपकी उधर से आ रही थी, बिहार झारखंड होते हुए यहाँ पे आई, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ से इट बिकम्स पद्मा व्हेन इट एंटर्स हियर, एंड देन यहाँ से इसकी दूसरी वो क्या निकल जाती है, हुगली। तो यहाँ पे गंगा आके कैसे हो जा रही है, पद्मा, ये बहती जा रही है ऐसे, तो यहाँ इसको पद्मा बोलते हैं ये लोग। और नीचे हमारे यहाँ हुगली रिवर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी कह लो एक तरह से, और ये यहाँ पे आके इसको दामोदर मीट करती है। चलो मैंने ही बता दिया, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, और फिर ये आके आपकी ड्रेन कर गई इधर। आगे बात समझ। तो यहाँ से गंगा जी पद्मा बन जाती हैं, नीचे आ जाती है हुगली बनते हुए, यहाँ पे आके फिर से दामोदर मिलती है इन्हें, और फाइनली ड्रेन्स हेयर। ठीक है, जहाँ दामोदर मिल रही है वहीं आपका क्या है, ईस्ट कलकत्ता का रामसर साइट है। और यहाँ पे बिल्कुल इस कॉर्नर में क्या है, मयूर झरना। नाम याद रखना, मयूरभंज नहीं, मयूरभंज कौन सी स्टेट में है बताओ कमेंट्स में। मयूर झरना का एलिफेंट रिजर्व है। एंड देन दिस पूरा एरिया, तो ये तो एब्सोल्युटली सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया विद रिगार्ड्स टू बायोडाइवर्सिटी, द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे सुंदरबन का टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट सब कुछ है। यहाँ पे हलीदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे लोथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे संजय खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ऐसे पूछ लेगा, लोथियान, हलीदे एंड संजय खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर पार्ट ऑफ, तो याद रखना सुंदरबन। ओके, बहुत टाइम से सुंदरबन से क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। ओके, तो हो सकता है आ जाए। फिर यहाँ ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना, महानंदा निकल रही थी, तो ये महानंदा आपकी आके यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी मिल जाती है इनटू दी गंगा पद्मा, जो भी कहो। ठीक है, क्लियर। फिर जहाँ इसके ही यहाँ पे क्या है, सिंगालिया नेशनल पार्क और जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो 21 रिवर पे पड़ती है, महानंदा पे। फिर इसके बराबर में आओगे तो इंटरनेशनल तीस्ता रिवर, ठीक है, सिक्किम से होते हुए फिर बांग्लादेश, और फिर आपकी आगे सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। ये कहाँ से निकलती है, जूमू ग्लेशियर से। और ये आपका ईस्टर्न वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये एरिया, ये एक एलिफेंट रिजर्व है, ईस्टर्न द्वार बोलते हैं इसको। द्वार मतलब वही गेट, तो ईस्ट का गेट, तो इसलिए ईस्टर्न द्वार। यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेशनल पार्क भी है, एंड जल्दापारा। इन सब की अपनी छोटी छोटी रिवर्स है, जैसे जल्दापारा से टोरसा रिवर निकलती है। फिर ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये गोरुमारा नेशनल पार्क है, इससे जलधाका रिवर निकलती है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर यहाँ पे एक नेशनल पार्क है न्योरा वैली, इससे न्योरा रिवर निकलती है। तो इनकी अपनी छोटी छोटी रिवर्स है, आगे कहाँ मिलती है, कहाँ जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए बस ये वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व, और यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है, और जल्दापारा भी इसी के अंदर आता है। क्लियर हो गई बात। गंगा गंगा एंटर करी, ऊपर महानंदा मिल गई, महानंदा निकल के आई थी सिंगालिया नेशनल पार्क के पास से। ठीक है, फिर ये यहाँ पे इधर जाएगी तो पद्मा, इधर जाएगी तो हुगली, यहाँ से दामोदर मिली, से दामोदर जहाँ मिली वो ईस्ट कोलकाता रामसार हो गया, उसके बराबर में मयूर झरना। ठीक है, फिर नीचे पूरा सुंदरबन वाला एरिया, इसमें लोथियान, हल्दिया, संजय खाली। ऊपर इस वाले एरिया में ईस्टर्न द्वार में बक्सा और जल्दापारा, और यहाँ पे दो और, एक न्योरा वैली और एक गोरुमारा। क्लियर हो गया। दिस इज़ द एंटायर वेस्ट बंगाल। तो हमने क्या क्या ट्रेस कर लिया आज। हम स्टार्ट किए उत्तराखंड से, हमने पूरा का पूरा पंच प्रयाग देखा, सारी रिवर्स देखी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, किसके ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है, ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने नंदा देवी का बायोस्फीयर रिजर्व देखा, इधर हमने यमुना और उसमें कौन सी रिवर मिलती है वो देखी, कहाँ से निकलती है, एक आसान का बैरेज देखा। फिर नीचे आके हमने देखा कि गंगा किस तरह इधर चली जाती है। देन हमने यहाँ पे पूरा यमुना गंगा का फ्लड प्लेन ट्रेस किया, इस पर कितने सारे वो हैं रामसर साइट्स हैं, वो सब ट्रेस किया। देन आगे चलते 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 हम इसमें पूरा हमने क्या क्या मिला दिया, रामगंगा, गोमती, ठीक है, काले और घाघरा मिलके सरयू, देन सरयू, इसमें ऐसे करके ये हमने पूरा मिला दिया। ठीक है, क्लियर बात। फिर हम नीचे आए इनटू बिहार। बिहार में हमने देखा वही बहुत सारी रिवर्स गंगा में मिलती रहती हैं। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हमने देखी। ऊपर आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसके पास लोरियनंदरगढ़, ये सब किस पे है, बिटवीन गंडक एंड बूढ़ी गंडक। देन इधर सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ मिलती है आके वहाँ है कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे क्या मिलते हैं, बहुत सारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वल्चर्स मिलते हैं, सोशलेबल लॉपिंग मिलते हैं, बेयर पोचार्ड मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी महानंदा आगे आके नीचे मिल जाएगी। यहाँ दो रिवर्स इंपॉर्टेंट, कर्मनाशा
एंड पनपन। पनपन निकलते छोटा नागपुर प्लेटो से और कर्मनाशा निकलते कैमूर हिल्स से। देन झारखंड में हमने देख लिया, इधर नॉर्थ कोयल सोन में मिली, इधर दामोदर निकल के इधर चली गई, सुब्रन रेखा निकल के पूरी की पूरी सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व से चली गई। ऊपर पारसनाथ, हजीराबाग, हजारीबाग और देवगढ़ देख लिया हमने। ठीक है, फिर लास्ट में हम वेस्ट बंगाल अभी हमने रिवाइज कर ही लिया। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा ये। ठीक है, एंड आई होप ये वाला लेक्चर आपको क्लियर हुआ। इसमें हमने 5 स्टेट्स ट्रेस कर ली। अब हम आगे 2 लेक्चर्स और लेंगे इंडियन मैपिंग के। एक में हम आपको राजस्थान, हिमाचल, JNK, लद्दाख, ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया बचता है आपका इधर का, दिल्ली, हरियाणा, ये वाला जो पूरा एरिया है ये सब कराएंगे। और एक एक जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको क्या कराएंगे, नॉर्थ ईस्ट, 8 के 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट वाली, ठीक है, और प्लस आइलैंड्स। ऐसे करके आपकी इंडिया की मैपिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में इंटरनेशनल में मैं आपकी रिवर्स ले चुका हूँ, और नेक्स्ट में जो आपका लूँगा वो होगा इट विल बी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। वो लेक्चर शायद आपका कल ही आ जाएगा। अच्छा, कल तो हमारा यस दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द अनाउंसमेंट अगेन, कल 8 बजे मिलना ही मिलना है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। ठीक है, अपना कैलेंडर खाली रखिएगा। तो कल 8 बजे हम वो वाला लेक्चर करेंगे, एंड देन आपको इंटरनेशनल का सेकंड लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ जो भी इंटरनेशनल अरीना में रहा है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज़ एकदम पता नहीं क्या गड़बड़ कर रही है। आई विल करेक्ट, इसको ठीक करूँगा मैं, थोड़ा सा बियर करने के लिए थैंक यू। एंड और बस मुझे इतना ही बताना था आपको। लेट्स मीट एट 8 PM टुमारो। और बाकी प्लीज़ ये लेक्चर्स देखते रहिए, दीज आर वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल एट 8 PM टुमारो। जय हिंद।